Hello everyone, welcome back to your YouTube channel. So before starting this video, I just want to apologize as I was not active as I was earlier, and there are several reasons behind it. And some of the reasons are that my exams are going on, and since past 2 months I'm not able to do anything extra, and yeah, my placements are coming, so I have to prepare for that as well, and working on my startup. And yeah, I was more into something else, so I was not able to put some content on YouTube. So let's just keep it aside and let's discuss what we'll be doing or what we'll be seeing in this video today. So as we all know, internship season is coming, and it's already there, we can say. Some of the companies started hiring, and so we thought that why not just take some advice from the person who himself got into Amazon, and he'll be telling us mantras, or we can say the hard work, the things he followed, and we'll be learning that SCP or DSA is necessary to get internship in MNCs like Amazon. And we'll be seeing that what kind of projects a fresher should make to get highlighted in the eyesight of recruiter, and also what extraordinary things to put on resume to get highlighted, and what else we need to follow to get internship, plus how to get PPO in such MNCs. So everything we're gonna see in this video. So without further ado, let's get started and take a seat properly and try to complete this video, because this video gonna be so informative. And I just wanna say personally that please do watch this video until the end, and try to like, share and subscribe our channel. Okay, so without further ado, let's get started. Hey Adi, welcome to our YouTube channel, and thanks for coming and to give our audience a very intuitive session. And I want to ask you to give your intro and tell us about yourself, please. Hey everyone. So first of all, thank you for having me. So I am Aditya Vikram Singh. I recently graduated from IIT VHU CSE branch. I have done a internship, SD internship in Amazon, and currently I am working full time at Wells Fargo. And now I want to ask that being as a fresher, let's get to the point. Okay, that being as a fresher, when I enter in a college, the every fresher's first dream is to crack an internship as soon as possible. Okay, फर्स्ट ईयर तो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एक्सप्लोर करने में ही निकल जाता है, ठीक है. बट हम सेकेंड ईयर में जैसे लैंड होते हैं, एवरीवन बिकम इन अ रैट रेस दैट अब इंटर्नशिप क्रैक करनी है, बट देयर इज नो वन there to guide us and to tell us that what kind of things we should follow and how we can grab such opportunities, or we can crack internship opportunity. And you have cracked Amazon's internship, so I want to ask you to guide our audience for internship. So your internship is going to be at the end of the third year, right? So you have a lot of time. If you want an early intern, they do not require you to have that kind of knowledge that they would require you to have later. Okay, मतलब SCP इतनी भी नहीं आनी चाहिए. अर्ली इंटर्न लगानी है तो लाइक सेकेंड ईयर में लगा ली है. कुछ लोग तो फर्स्ट ईयर में जाते हैं, उनको तो बेसिकली वो अगर जो इंटर्न चाहते हैं उनको भी पता है इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है. ऐसा होता है. अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? मान लो तुम कॉलेज में गए, पहले तो एंजॉय कर लो भाई, अपनी पूरी मतलब जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं सब उतार लो, आधा साल लो, चिल करो, ठीक है. फिर अभी जोन में आ जाओ कि चलो कुछ तो करने आए हैं, ठीक है. अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, कोई लैंग्वेज पिक करो. जैसे मेरे लिए इजी था C++, क्योंकि मैंने 12th में पढ़ रखी थी, तो मैंने वापस उसको पिक करा. तुम जावा भी कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो. ज़्यादा एक्सट्रीम मत चले जाना कि ग्रूवी भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है. मतलब पता चलो उस पर तुम्हें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है. ऐसा भी मत कर लेना. C++, पाइथन, जावा ये काफ़ी है. इसमें से C++ करते हो तो मतलब मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मुझे ईजी लगती है. कोई भी पिक करो, उस पर बेसिक्स को पहले मास्टर करो. 4 महीने लगाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से करो. तुम्हारे पास अभी टाइम है, 1.5 साल बचे हुए हैं, ठीक है. ऐसे सोच के करो. 4 महीने बाद जब तुम जहाँ पे होगे, तुम एक बेसिक इंटर्न अगर तुमको लगवानी हो तुम लगवा लोगे. बस अप्लाई करो, मतलब बेइज्जतों की तरह अप्लाई करो, ठीक है. ये मत सोचो कि यहाँ बेइज्जती होगी. हाँ डालो, हाँ मेल करो, जो करना करो, ठीक है. कोई तो रिप्लाई देगा, कोई हो सकता है उठा ले.
ठीक है। अगला साल आ गया, सेकेंड ईयर में आ गए तुम अब, ठीक है। अभी तुम्हें सीरियस होना है, ठीक है। अभी तुम बेसिक पहले तुमने पढ़ा होगा, एरे स्टैक वगैरह ये सब बेसिक हो जाता है, ये सब तुमने अभी तक सीख लिया होगा बेसिक लेवल पे। अब तुम कोई प्लेटफॉर्म उठाओ, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म पे काम मतलब करना शुरू करो। मैं पर्सनली बहुत प्रेफर करता हूँ कोड फोर्सेस। लोग यूजुअली लीड कोड करना चाहते हैं, मैं रीज़न बताऊँगा मैं लीड कोड क्यों नहीं प्रेफर करता था। मैं कोड फोर्सेस बोलूँगा, कोड शेफ नहीं, कुछ नहीं, हैकर नहीं, हैकर रैंक नहीं। हाँ, बेसिकली कोड फोर्सेस से मैं इनिशियली हैकर रैंक से स्टार्ट कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि वहाँ पे बेसिक सवाल थोड़े इजी होते हैं, इजी टू गेट स्टार्टेड ऐसा कह सकते हो। फिर तो हाँ एग्जैक्टली या कोड शेफ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर अगर तुम सेम एक्सपोजर जा रहे हो तो मेरे ख्याल से कोड फोर्सेस तुम्हें बेटर दे देगा। लीड कोड एक अलग चीज़ है, लीड कोड प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। लीड कोड सिर्फ उस टाइम काम आती है ना, मुझे लगता है ऐसा, जब प्लेसमेंट या इंटर्न्स या इंटरव्यूज़ बहुत पास आ रहे होते हैं, ठीक है। लीड कोड पे वो सवाल डले होते हैं जो किसी कंपनी में आ चुके होते हैं। वो कब आते हैं? या तो किसी टेस्ट में आते हैं या तो वो किसी इंटरव्यू में आते हैं, ठीक है। लेकिन लीड कोड के जो सवाल होते हैं ना, वो ओरिजिनली कहीं ना कहीं से कोड फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल कोड फोर्सेस पे होते हैं। हर तीसरे चौथे दिन एक कॉन्टेस्ट हो जाएगा, वहाँ से तुम्हें नए सवाल मिलेंगे। तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुमको लीड कोड करने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से कोड फोर्सेस करो, तुम आराम से कोड शेफ कर लो, ठीक है। अभी तुम्हारा सीखने का फेज़ है, इंटर्नशिप लगाने का फेज़ नहीं है। एक साल इसमें अब ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें डेली 5-5 सवाल लगाने हैं। डेली 1-2 सवाल लगाओ, हट जाओ, ठीक है। एक साल में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। अगर तुमने ये सही से कर लिया तो एक साल में तुम लिटरली बहुत अच्छे हो जाओगे। धीमे धीमे अंदर क्या है तुम सीखते जाओगे। ऊपर का सीखोगे तो सवाल देखोगे, नहीं होगा, तुम उसमें सीखने की कोशिश करोगे, फिर आगे देखोगे उसको कैसे करना है, तो नया डाटा स्ट्रक्चर पता चलेगा, नया एल्गोरिथम पता चलेगा, तुम उसको भी सीखोगे। धीमे धीमे तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। तो उसके बाद तुम्हें लिटरली फिगर करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे लगेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल। हाँ, मतलब प्रोसेस तो देखो यही है। हाँ, so very well explained. In 5 minutes only, Aditya sir gave us a very beautiful roadmap, and like he told us everything, like what he followed, and या बहुत अच्छी तरह से explain किया। अब तुम्हें अगर नहीं इससे समझ में आ रहा है तो यार कहीं नहीं समझ पाओगे, सुन लो, ठीक है। तो यार यहाँ से बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से समझ में आया ये चीज़, ठीक है। और मैं ऐसे पर्सनली किसी को अप्रिशिएट नहीं करता हूँ पॉडकास्ट में, बट ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, द वे ही एक्सप्लेन इन दिस 5 मिनट्स। वरना रोड मैप्स काफ़ी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे लोग अपने 10-20 मिनट देते हैं, बट उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बट इन 5 मिनट्स ओनली उन्होंने सारा कवर कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आई वांट टू मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब इंटर्नशिप के लिए मैंने तैयारी कर ली, बट अब जो मेन चीज़ होती है जो रिक्रूटर्स देखते हैं बिफोर, ये तो हमारा तब होगा जब हमारा रेज्यूमे सेलेक्ट होगा, बट हमारा रेज्यूमे कैसा होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए ना, कि एक रेज्यूमे कैसा हो और किस तरह से उसको बिल्ड करना है, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें बनाने चाहिए कि जो रिक्रूटर्स की नज़र में आए, और ताकि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि हम अपने स्किल्स शो कर सकें। हाँ देखो, तो अभी तुम ये पूछ रहे हो कि रिज्यूमे कैसा रहे, कि उसमें क्या होना चाहिए, राइट। तो तुम्हें क्या चाहिए रिज्यूमे में? रिज्यूमे में तो तुम्हारा पॉइंटर होता है, तुम अपने तो पॉइंटर तो तुम खुद जानोगे भाई तुम कैसा पा रहे हो अभी तक, ठीक है। कोशिश करो, मैं बोलूँगा कि अब तुम्हारे कॉलेज पे भी ये डिपेंड करता है वहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है। कभी कई कॉलेजेस ख़राब ग्रेड करते हैं, कई अच्छा करते हैं। ट्राई करो, अगर मान लो आउट ऑफ 10 बोलें तो ट्राई करो तुम्हारी 7 रहे, ज़रूरी हो जाता है उतना, ठीक है, अच्छी कंपनीज में बैठने के लिए। 8 है बहुत अच्छा, 9 अच्छी बात है, मतलब ऑफकोर्स वो तुमको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बट 9 के लिए तुम्हें टाइम भी बहुत देना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर कर सकते हो। कई लोग केपेबल नहीं होते भाई, सही बता रहा हूँ, 9 नहीं आता लोगों का, मतलब मेरा खुद 8 आ जाता था तो मैं कहता था ठीक है काफ़ी है। 8 पाना अच्छी बात है, 7 ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके नीचे फिर तुम्हें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो हो गया पॉइंटर। फिर आता है रेज्यूमे, ठीक है। रेज्यूमे में तुम्हें प्रोजेक्ट्स, अब प्रोजेक्ट्स में क्या है तुम्हें, अब देखो पहले तो बच्चे कॉलेज जाते हैं और कहते हैं कि एमएल और एआई, ये मतलब 2 शब्द बड़े बड़े सुन लिए हैं, लग जाओ, ठीक है। मैं तुमको सही बता रहा हूँ, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ भी लोगों ने बोला है, और कई सारे जगहों पे मैंने सुना है बड़े CEO से, मतलब ऐसे लोगों से, ठीक है, कि एमएल अभी बहुत दूर है अपनी जहाँ उसे होना चाहिए और जहाँ लोग उसे समझते हैं कि वो है, ठीक है। अभी उसकी इतनी ज़रूरत है ही नहीं एक्चुअली, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं। इंडिया में अलग टाइप का कल्चर है, इंडिया में हम बेसिकली नौकरी खोजते हैं,
ठीक है। कुछ अलग इंट्रीगिंग करना है तो स्टार्टअप खोल लो, ठीक है, वो तुम ML में करो। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए जो कि जिसके लिए तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों की इतनी इम्पोर्टेंस अभी है नहीं, ठीक है। तुम एनालिस्ट प्रोफाइल में नहीं आ रहे हो, तुम ये समझो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात कर रहा हूँ। एनालिस्ट में ML की ज़रूरत है, एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए तुम्हें ML पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा SQL वगैरह काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर में तुम ML कर सकते हो, अच्छी चीज़ है, सीखनी चाहिए, ठीक है। बट अगर उसके पीछे ही मत भागो मेरे सारे प्रोजेक्ट ML में होने चाहिए। तुम डेवलपमेंट करने आ रहे हो, डेवलपमेंट के कोर्सेज उठाओ ना, वेब डेवलपमेंट उठा लो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट उठा लो, कुछ भी उठा लो। किसी रिक्रूटर को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया है, वो ये जानना चाहता है जो तुमने किया है वो कैसा किया है, ठीक है। उसका मेन एम यही रहेगा। तो तुम जब इंटरव्यू में बैठोगे तो ऐसा नहीं होता कि वो सोचते हैं कि अच्छा ये हमारा कंपनी तो ये काम करता है तो इससे सिमिलर आना चाहिए। वो तुमसे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके हिसाब से तुम बेवकूफ़, मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता उस चीज़ के बारे में, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें लाएँ हैं कि वो तुम्हें सिखाएं, ठीक है। वो तुम उनकी इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। वो तुम्हें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे हम लेके आएंगे और सिखा देंगे, लेकिन वो जज किस हिसाब से करेंगे, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें ये तो हो गया फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स आते हैं और तुम्हारे मेरिट्स क्या क्या है, ठीक है, अभी तक तुमने क्या अचीव किया है। तो तुम अगर किसी प्लेटफॉर्म पे हो जैसे कोडशेफ या कोड फोर्सेस, ठीक है, तो जो भी तुमने अभी 3 स्टार हुए या कोड फोर्सेस पे अगर इनके 1600 हो चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें रिक्रूटर लोग इज्जत देंगे, ठीक है। अगर नहीं हुए हो तो जो भी तुम्हारी रैंकिंग है कोशिश करो अच्छी रहे, उसे मेंशन करो। कोड शेफ पे क्या होता है, स्टार्स होते हैं ना, मैं ज़्यादा करता नहीं था कोड शेफ पे जितने भी स्टार्स होते हैं यूजुअली लोग 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ऐसे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऐसे कर लो कोड शेफ, तुम जो हमारी जो भी रैंकिंग है ये चीज़ें तुम्हें मेंशन करनी है, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारे पास अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं जो तुमने किसी वेबिनार में बैठ के या किसी हैकाथॉन में पाया है, ठीक है, उसे मेंशन करो। उसके बाद तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर है, कॉलेज में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ करते हो तो उसे कर लेना।